میرا شوہر بہت نیک اور تہجد گزار تھا، مگر پھر بھی وہ دن رات روتا اور کہتا مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ وہ روزانہ اپنے ہاتھ سے کھانا بناتا اور گھر کے اندر صحن میں ہی بڑا دسترخوان لگا کر سب غریب عورتوں کو کھانا کھلاتا، مگر مجھے اس کھانے کا نوالہ بھی چکھنے نہ دیتا۔ ایک دن میں میکے کا بہانہ کر کے پھٹے کپڑے پہن کر شوہر کے ہاتھ کا کھانا کھانے چلی گئی۔ جلدی سے کھانا کھا کر واپس میکے چلی گئی، مگر جب میں اپنے کمرے میں سونے آئی تو روح لرز گئی، کیونکہ میں آج آپ کو اپنی کہانی سنانے لگی ہوں، وہ کہانی جس سے میری زندگی بدل گئی۔ میں اس واقعے کو کبھی بھول نہیں سکتی، نہ ہی بھلا سکوں گی۔ سنیے میری کہانی میری زبانی۔ میرا نام ہنا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ میرے 2 بھائی ہیں۔ چونکہ میرے والد صاحب اکلوتے بیٹے تھے تو گھر میں ان کی طرح اکلوتی ہو کر میری بھی ہر بات مانی جاتی تھی، اور کچھ اس لیے کہ میں بہت منتوں مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ دی جان کہتی تم ہماری دعاؤں کا صلہ ہو۔ انہیں بیٹیاں بہت پسند تھیں، اسی وجہ سے سبھی مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ دی جان اور دادا جان میرے پیدا ہونے پر بہت خوش تھے۔ پورے گاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی، گاؤں کے غریب لوگوں کو کھانا کھلایا گیا، سب خوشیاں منا رہے تھے۔ میرے بھائی ہر وقت میرے پاس رہتے، میری ہر خواہش پوری کرتے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا، میری ہر چیز، ہر خواہش منہ نکلتے ہی پوری ہوتی، کیونکہ میرے منہ نکلی بات حکم کی حیثیت رکھتی۔ جب میرا کالج کی پڑھائی مکمل ہوئی تو میں نے یونی جا کر پڑھنے کی ضد کی، لیکن اس بار دادا جان نے صاف منع کر دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا، میری ہر بات ماننے والے انسان نے میری خواہش کی قدر نہیں کی۔ ہمارے خاندان میں بیٹیاں ایسی جگہوں پر نہیں جاتی جہاں لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھتے ہوں، اور نہ ہی اتنا پڑھتی ہیں۔ تم نے جتنا پڑھ لیا اتنا کافی ہے، اس لیے دوبارہ ایسی ضد نہیں ہوگی۔ سخت لہجے میں حکم سناتے دادا جان چلے گئے۔ ماما مجھے یونی جا کر پڑھنا ہے اور یہ میری ضد ہے۔ اب آپ سب مجھ سے اس وقت بات کریں گے جب میری بات مانی جائے گی، اس سے پہلے کوئی بھی میرے پاس نہیں آئے گا۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں، میں نے ضدی اور وسیلے لہجے میں کہتے ہوئے اپنے آپ کو کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ روتے ہوئے دروازہ بند کرتی وہی بیٹھ گئی۔ میں جانتی تھی دونوں بھائی جان اور مما جان میرے آنسو دیکھ چکے ہیں، اور اب مجھے یقین تھا میرے یونی جانے کی ضد پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہ میرے آنسو دیکھ کر تڑپ جاتے تھے۔ اس بار بھی یہی ہونا تھا، اس لیے اٹھ کر میں نے اپنے کپڑے نکالے اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آ کر سو گئی۔ اب مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر مجھے پتہ نہیں تھا میری ضد کی وجہ سے گھر والے کتنا دکھی ہو گئے تھے، اور ہوا بھی یہی۔ سب گھر والے بہت پریشان تھے۔ مما جان اور دادی جان نے دادا جان کی بہت منتیں کی اور انہیں میری محبت کا حوالہ دیا، مگر وہ نہ مانے۔ بابا جان مایوسی سے گھر سے باہر نکل گئے۔ میں شام تک سوتی رہی۔ دادی جان دوپہر کا کھانا لے کر آئیں، مگر بار بار دستک ہونے پر بھی اندر سے ہنوز خاموشی دیکھ مایوس ہو کر چلی گئی۔ آپ کچھ بھی کریں مگر میری بیٹی کی ضد پوری کریں، میں اسے اداس نہیں دیکھ سکتا۔ بھائی جان نے بابا جان کے آگے التجا کی۔ ابا جان اس بات کی اجازت نہیں دیں۔ بابا جان نے افسوس سے کہا میں اپنی بیٹی کو روتا دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ ماما جان نے دکھ سے کہا بیگم آپ جانتی ہیں خاندان والے ہمارا جینا محال کر دیں گے، اس لیے میں بھی مجبور ہوں۔ بابا جان بے بسی سے بولے مجھے کچھ پتہ نہیں، مجھے صرف اپنی بہن کی خوشیاں عزیز ہیں، مجھے ذرا برابر پرواہ نہیں خاندان والوں کی۔ چھوٹے بھائی جان نے سرد لہجے میں کہا میں کچھ نہیں جانتا، اس لیے بس کر دیں۔ بابا جان نے غصے سے کہا وہ خود بہت پریشان تھے، اوپر سے ان سب کی باتیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، خود کو کمرے میں بند کیے بیٹھی ہے۔ خدا کا واسطہ یہ سزا نہ دیں، میری بچی کو پہلے ہی وہ بہت کمزور ہے، یوں اگر وہ کھانے پینے سے ضد لگا لے گی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ دادی جان نے روتے ہوئے کہا کافی دیر
दादी जान यूं ही उन्हें कहती रहीं। बिलआखिर वो मान गए। ठीक है, इसे इजाज़त है, मगर एक शर्त पर। दादा जान हारते हुए बोले, कौन सी शर्त? कैसी शर्त? अब आप अपनी बच्ची की खुशियों के बीच शराइत रखेंगे? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दादी जान ने नफ़ी में सर हिलाते कहा, वो वहाँ किसी लड़के से बात नहीं करेगी और पर्दे की पाबंदी करेगी। ये मेरा हुक्म भी है और शर्त भी। हुक्मिया लहजे में कहते बिस्तर पर लेट गए। दादी जान को तो यही खुशी काफ़ी थी कि मेरी ज़िद पूरी हो गई है, इसलिए वो भागी भागी मेरे पास आई। इना दरवाज़ा खोलो, मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छी खबर है। इना जल्दी कर, दरवाज़ा खोलो। वो खुशी खुशी दस्तक देती चिल्ला रही थी, क्या हो गया है दादी जान? मैं नींद खराब होने पर चिढ़ते हुए बेड पर ही बैठी बोली, उठकर दरवाज़ा खोल। उन्हें देखने लगी, जो मुझे सामने देखकर गले लगाकर हंसते हुए बोली, तुम्हारे दादा जान ने तुम्हें शहर जाने की इजाज़त दे दी है। अब तुम वहाँ जाकर पढ़ सकोगी और तुम्हारा ख्वाब पूरा होगा इंशाअल्लाह। वो खुशी से बता रही थी, यूं जैसे उससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ की ना हो। मैंने पहले कुछ लम्हे इन्हें देखा, फिर खुशी से चिल्लाती इनके गले लग गई। बहुत बहुत शुक्रिया दादी जान, मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह कसम, मेरा बहुत दिल था आगे यूनी जाकर पढ़ने का और बहुत मास्टर्स पूरा करने का। मेरा दिल कर रहा है खुशी से झूमने लगूं। मैंने दादी जान को गले लगाते हुए कहा तो वो हंसने लगी। यूं ही मैंने दादा जान का शुक्रिया अदा किया और उनकी तमाम शराइत मान ली। मेरे यूनी जाने की तैयारियां होने लगी थी। मुझे दादा जान की शराइत से कुछ फ़र्क ना पड़ा, क्योंकि मैं पहले ही लड़कों से बात करना पसंद नहीं करती थी। वहाँ जाकर बात ना करना मुश्किल नहीं था। 1 महीने बाद मैं और मेरा भाई शहर शिफ्ट हो गए। जाते हुए दादा जान दादी जान ने मुझे बहुत सी दुआएं दी और अपना ख्याल रखने की ताकीद की। बाबा जान ने अपनी हिफाजत करने का कहा और मामा जान ने खाने वक्त पर खाने का कहा और हर हफ्ते को मिलने आने का वादा लिया। यूं हम शहर रवाना हुए और मेरा दाखिला यूनी में हो गया। मैं यूनी के गेट के पास खड़ी सोच रही थी कि मेरा अच्छा मुस्तकबिल शुरू होने वाला है, मगर मेरी किस्मत तो कुछ और सोचकर मुस्कुरा रही थी। मेरी पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे भाईजान रोज़ खुद यूनी छोड़ने आते और पिक करते। मुझे यूनी गए अभी कुछ ही वक्त हुआ था जब कैंटीन में बैठे हुए मेरी नज़र कोने में मेज़ पर गई, जहाँ एक लड़का सर कर कुर्सी की पुष्ट से टिकाए बैठा था। आंखें हनूज छत कर घूर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगा, इतना खुश शक्ल नौजवान यूं अकेला क्यों बैठा है? ये मेरे ज़हन पर इसके लिए उभरने वाला पहला सवाल था। मैंने सर झटका और उठकर वापस क्लास में आ गई। क्लास में बैठे 5 मिनट गुजरे थे जब वही लड़का अंदर दाखिल हुआ तो साथ प्रिंसिपल साहब भी थी, जिन्हें देख सभी लड़के लड़कियां एहतरामन खड़े हो गए। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, ये आपके न्यू प्रोफेसर हैं अदनान सिद्दीकी साहब, इनका वेलकम करें। प्रिंसिपल साहब ने खुश इखलाकी से तारुफ करवाया। वेलकम सर, सब ने यकज़बान कहा। थैंक यू सो मच एवरीवन। प्रोफेसर साहब ने ज़रा सा मुस्कुरा कर कहा, वो हमें पढ़ाते वक्त बिल्कुल संजीदगी से रहते, मगर जब भी मैं उन्हें अकेला बैठा देखती मुझे हैरत होती कि ये शख्स ऐसा क्यों है। दिन गुजरते रहे, मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गई। अब गांव जाने का वक्त ना मिलता। एक दिन मैं कैंटीन से सीधा अपनी क्लास में जा रही थी जब एक कमरे के बाहर बासाख्ता कदम थम गए। दरवाजे के ऊपर लगे गिलास से जब अंदर नजर गई तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, चेहरे पर पसीने छूटने लगे। मैं जल्दी जल्दी कदम उठाती तकरीबन भागते हुए बाहर निकली। यूनी गेट से निकलती रोड पर चलने लगी, तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ जाने लगी। बार बार इस कमरे के अंदर का मंजर आंखों के सामने फिल्म की तरह चल रहा था। हिना हिना मुझे अपने पीछे से किसी की पुकार सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा तो जीबा
मेरी क्लास फेलो और दोस्त मुझे रुकता देख घुटनों पर हाथ रखे सांस ले रही थी। अरे लड़की, पागल वागल हो गई हो, दिमाग खिसक गया है क्या जो यूं भाग रही हो? चलती सड़क पर वो सीधी होती मुझ पर चिल्लाने लगी, क्या हुआ हिना, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? इसने मेरे चेहरे को देखते अब की बार नरमी से पूछा। पहले मेरा दिल किया इसे सब बता दूं, मगर फिर ज़मीर की मलामत करने पर ज़बान पर ताला लगा लिया। अब बोल भी पड़ो। वो गुस्से से बोली, मुझे छुप कर कुछ नहीं, बस सर दर्द कर रहा है, इसीलिए जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाहती हूँ। मैंने बहाना बनाया। अच्छा सही, चलो मैं छोड़ देती हूँ, वैसे भी मैं घर ही जा रही हूँ। उसने अपनी गाड़ी की तरफ इशारा करते कहा। नहीं यार, मैं चली जाऊंगी। मैंने उसे टालना चाहा, मुझे डर ही था कहीं बाबा जान या दादा जान को मेरा ऐसे किसी की गाड़ी में घर जाना बुरा लगा तो कहीं वो मेरा यूं ही जाना बंद न करवा दें। अरे यार चलो, क्या बहस कर रही हो इतनी सर्दी में? उसने मेरा बाजू पकड़ते जबरदस्ती मुझे गाड़ी में बिठाया और घर की तरफ रवाना हुई। वो सारे रास्ते बोलती रही, जबकि मेरा दिलो दिमाग तो अभी तक यूनी के उसी कमरे में था। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? वहाँ यही सवाल बार बार कानों में गूंज रहा था। जब जिया ने मेरा कंधा हिलाया, घर आ गया तुम्हारा, उसने बाहर की जानब इशारा किया। हाँ अच्छा, मैं चलती हूँ, मैंने कहते साथ ही गाड़ी से निकलना चाहा, जब उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इना ज्यादा तबीयत खराब है तो अस्पताल चलते हैं, जिया हमदर्दी से कहा। तो मैंने मुस्कुराकर उसे देखा। नहीं, बस जरा सा दर्द है, चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाऊंगी, फी अमान अल्लाह, मैंने कहा तो भी जवाब देती चली गई। अंदर आते ही पहले मेडिसिन ली, फिर सोने चली गई। अभी सोए कुछ देर ही गुजरी थी जब एकदम आंख खुल गई। वीरान घर में खुद को अकेला महसूस करके मुझे खौफ महसूस होने लगा। मैंने भाईजान को कॉल की और जल्दी घर वापस आने का कहा, तो वो 15-20 मिनट तक घर लौट आए। उन्होंने बहुत पूछा क्या हुआ था, डरी हुई क्यों लग रही हो? पहले मैंने बताने का सोचा, मगर नहीं, वो अगर ऐसा कुछ जान लेते तो मुझे लेकर वापस गांव चले जाते और इससे मेरा मुस्तकबिल खराब हो जाता। यही सोचकर मैंने भाईजान को बताने का इरादा तर्क कर दिया, तो वो छुप गए। मैंने भी इस सब को बुलाने की कोशिश शुरू की और दोबारा अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाने लगी। कोशिश करती कि जल्द से जल्द अपना सारा काम ख़त्म करके घर वापस आ सकूं। यूनी में पूरा वक्त जिया के साथ रहती और ख़ुद को महफूज समझने लगती, मगर अफसोस मैं तब भी महफूज न थी। कुछ दिनों तक मैं इस बात को भूलने में कामयाब हो गई और ध्यान पढ़ाई पर देने लगी। मेरा 3rd सेमेस्टर मुकम्मल हो गया तो मैं गांव में सबसे मिलने चली गई। छुट्टियां गुजर रही थी। बाबा जान, मामा जान, दादा जान और दादी जान हर वक्त मेरे पास होते, मुझसे बातें करते रहते। इसी तरह मेरी छुट्टियां गुजर गई और अब मैं सिर्फ 1 हफ्ता यहाँ थी। जब कुछ लोग घर आए, मैं कमरे में बैठी जिया से बात कर रही थी। जब मुलाजमत इजाज़त लेकर अंदर आई, बीबी जी बाहर सब आपको बुला रहे हैं, वो कहकर चली गई। मैंने कॉल कट की और कमरे बदल कर बाहर निकली। अस्सलामु अलैकुम, मैंने अंदर दाखिल होते हुए अदब से सलाम किया। मेरी आवाज़ पर सबकी नज़र मुझ पर उठी। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा, वहाँ क्यों खड़ी हो, यहाँ आओ मेरे पास, वो खातून खुले दिल से बोली। तो मैंने अजनबी से बाबा जान को देखा, फिर मम्मा जान को। दादी जान ने इशारे से मुझे बैठने का कहा तो मैं उनसे ज़रा फासले रखकर बैठ गई। वो तो मुझ पर निहार जा रही थी, बार बार मुझे प्यार कर रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा था। मैंने चिढ़कर अम्मा जी की तरफ देखा तो वो मुझे खामोशी से बैठे रहने का इशारा करने लगी। इना जाओ, जाकर देखो मुलाजमा काम कर रही है कि नहीं। दादी जान मुझे गुस्सा होता देख बोली, तो मैं तशक्कुर से उन्हें देखती वहाँ से निकलकर वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा कुछ वक्त पहले का गुस्सा अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका था, शायद इसलिए कि मैं खुद को अब अपने कमरे में थी। लैपटॉप लेकर नावल पढ़ने लगी और ऐसा मगन हुई कि बस पता ही ना चला वक्त गुजरने का। मम्मा जान कुछ देर बाद मेरे पास आई। मैं उस वक्त लैपटॉप पर गेम खेल रही थी। उन्हें आता देखकर लैपटॉप एक तरफ रखा और सीधी होकर बैठी। वो सामने सोफे पर बैठ गईं। मैं उन्हें देखकर उठकर उनके पास जाकर बैठ गई। हिना, तुम्हारी खुशी हमें सबसे अजीज है,
तुम जो चाहोगी वही होगा, मगर तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचेंगे। वो तमहीद बांध रही थी। मैंने हैरत से उन्हें देखा, वो किसी खुशी की बात कर रही थी। मामा जान, आपको जो कहना है साफ साफ कहें, मैंने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा। तो जैसे उनको हिम्मत मिली हो, हिना वो लोग तुम्हारे लिए आए थे। वो आराम से बोली और मेरा चेहरा देखने लगी। मेरे लिए क्यों, मतलब वजह? मैंने हैरत से पूछा। भला उन्हें मुझसे क्या काम हो सकता था? वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बड़ा बच्चा है और तू और तुम्हारी यूनी में भी प्रोफेसर है, वो बोल रही थी और मैं उनकी बातें सुन सोच में पड़ गई कि वो किसकी बात कर रही हैं। तुम्हें वही देखा था, उन्होंने ज़मींदार लोग हैं, बहुत अच्छे म्यार वाले और मुखलिस। मुझे तो बहुत पसंद आए। तेरी बाबा जान, दादी जान और दादाजी भी राज़ी हैं। अम्मा जी ने खुशी से बताया। और भाई जान, वो राज़ी नहीं हैं क्या? अम्मा जी का दोनों भाइयों का नाम न लेना मुझे शक में डाल गया था, इसलिए पूछा। हाँ, वो भी राज़ी हैं, मगर अपनी तसल्ली करना चाहते हैं, इसलिए वक्त मांगा है। तो बता, तू क्या चाहती है? मामा जान ने उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते पूछा। मामा जान, आप सब मेरे बड़े हैं, मुझे खुद से अजीज़ आप हैं। आपका फ़ैसला मेरे लिए हुक्म होगा, इसलिए आप सबको जो बेहतर लगे। मैंने नज़रें झुकाकर कहा। मैं ज़िद्दी सही मगर शर्म लिहाज रखने वाली थी। मामा जान मेरी पेशानी चूमकर चली गई। मैं सोच में पड़ चुकी थी। मैंने तो कभी उन्हें नहीं देखा था, तो उन्होंने मुझे कहाँ देखा और उन्हें मेरे घर का पता कैसे चला? हैरत है, वो मेरे घर तक पहुँच गए और मुझे इल्म तक ना हुआ कि कोई मेरे पीछे मेरे घर तक आ पहुँचेगा। मैं परेशानी से कमरे में चक्कर काटने लगी। इस वक्त मेरे जहन से मुकम्मल तौर पर निकल गया यूनी में क्या हुआ था। मंगनी धूमधाम से हुई। शादी पढ़ाई मुकम्मल होने पर होनी थी। मंगनी करने भी लड़के के घर वाले आए थे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़के को शादी से पहले देखने का रिवाज न था। इसी वजह से मुझे नहीं पता था कि वो कौन है, बस नाम पता था और यूनी वो छोड़ चुका था, जिसकी वजह से मुझे यूनी जाने से रोका ना गया। मेरा सेमेस्टर पूरा होने में वक्त था। जब मेरे ससुराल वालों ने शादी की तारीख मांगी तो घर वालों ने पेपर से बाद की तारीख दे दी। एक तरफ पेपर और दूसरी तरफ शादी। मैं तो गुन चक्कर बनकर रह गई, कभी बाजार तो कभी किताबों में सर दिए बैठी रहती। यूं ही पेपर ख़त्म हो गए तो मैंने शुक्र का कलमा पढ़ा। अब मुझे पूरी तरह शादी की तैयारियों पर ध्यान देना था। पूरे दिल से सब कुछ खरीदती सजाती। मेरी शादी का दिन आ पहुंचा। सारा ख़ानदान आ चुका था। आधी रात तक फंक्शन चलता रहा। जब जिया मेरे करीब बैठी, तुमने तस्वीर देखी है? उसने कान में सरगोशी की। किसकी? मैंने भी इसी के अंदाज में पूछा। अरे भाई, अपने होने वाले शोहर की। माथे पर हाथ मारती बोली। नहीं। एक लफ्ज़ी जवाब देकर मैंने दोबारा बच्चों का डांस देखने लगी। हिना, तुम्हारे होने वाले शोहर हमारे वही प्रोफेसर हैं जो वो अभी बोल रही थी जब मामा जान आ गई। हिना, तुम आराम कर लो, अब रात काफ़ी हो गई है। जिया बेटा, तुम ज़रा मेरे साथ आना। हिना को इसकी कज़न कमरे में छोड़ देगी। मामा जान के कहने पर वो ना चाहते हुए भी उठकर चली गई और मैं कमरे में आ गई। जब जिया आई तब तक मैं सो चुकी थी। अगली सुबह फिर वो मुझे कुछ बताना चाहती थी, मगर वहाँ सब कज़न बैठी थी और वो मुझे तैयार करने के लिए घर में ही लड़की आई थी। वही इसी कमरे में निकाह हो गया। निकाह के वक्त मुझे पता चला मेरा निकाह अदनान सिद्दीकी से हुआ है। कुछ कुछ याद था मगर मुकम्मल नहीं। और वही से रुखसती गाड़ी में बैठे मुझे होश नहीं था दूल्हा देख सकूं। मुझे तो अपने घर से दूर होने का दुख रुला रहा था। ससुराल जाकर कुछ रस्मों के बाद मुझे रूम में बिठाया गया। मुझे बैठे 2 घंटे गुजर गए मगर अभी तक शोहर साहब तशरीफ़ नहीं लाए थे। इंतज़ार में मुझे नींद आ गई। सुबह आंख खुली तो अदनान शीशे के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। मैंने आंखें खोलकर बंद की। ये मेरा वहम नहीं था। आई एम सो सॉरी, मैं सो गई थी। रात का वाक़या याद आने पर मैंने शर्मिंदगी से कहा, कोई बात नहीं, तुम तैयार हो जाओ ताकि नाश्ते के लिए जा सकें।
उसके इस कदर इत्मीनान से कहने पर मुझे हैरत का झटका लगा। मतलब उसे फर्क नहीं पड़ा। कुछ देर बाद मैं तैयार होने चली गई और नाश्ते के लिए नीचे चली गई, जहां अदनान और अंकल बैठे अखबार पढ़ रहे थे, जबकि आंटी किचन में नाश्ता बना रही थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। नाश्ता लाने से मना कर दिया था। बाबा जान को नाश्ते से फारिग होकर पार्लर चली गई। दोपहर का वलीमा था, वहां से फ्री होकर घर का चक्कर लगाया और वापस ससुराल आ गए। मैं सो रही थी जब किसी के सिसकने पर आंख खुली तो सामने अदनान जाए नमाज पर बैठा शिद्दत से सिसक रहा था। नजर घड़ी पर पड़ी तो वक्त नमाज तहज्जुद का था। मुझे अदनान को यूं रोता देखकर हैरानी हो रही थी। वो ऐसे क्यों रो रहा था? मैं उठकर उसके पास गई। अदनान, क्या हुआ आपको? यूं क्यों रो रहे हैं? क्या कोई बुरा ख्वाब देखा है? मैंने उनके कंधे पर हाथ रखते पूछा तो वो मुझसे लिपट कर रोने लगा। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है हिना, अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा, वो रोते हुए बोला। मुझे झटका लगा। ऐसा कौन सा गुनाह किया था उसने? मैंने खुद को इसके हसार से निकाला और इसे लेकर बेड पर बैठ गई। ऐसा क्या कर दिया आपने जो यूं कह रहे हैं? मैंने उनके आंसू साफ करते पूछा। बहुत बड़ा गुनाह किया है मैंने। वो फिर से वही बोला। अल्लाह तो रहीम है, वो माफ करने वाला है, रहम करने वाला। भला वो क्यों माफ नहीं करेगा आपको? मैंने प्यार से कहा। मेरे लाख पूछने पर भी अदनान ने मुझे अपने गुनाह का नहीं पता या रोते हुए भी वो सो गया और मैं भी अगली सुबह फजर पढ़कर भी यूं ही रोता रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूं क्या, कैसे इसे चुप करवाऊं। इसी सोच में मैं उठकर कमरे से बाहर आ गई, जहां मेरी सास साहिबा नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही थी। सोचा इनसे पूछ लूं, मगर फिर सोचा वो अपने बेटे के लिए परेशान होगी। मैंने उनकी मदद करना चाहिए, मगर उन्होंने नरमी से मना कर दिया। शाम को असर के बाद मैं किचन में गई। हैरत की इंतहा न रही जब चूल्हे के करीब खड़े अदनान को देखा जो खाना बना रहा था। अदनान कुछ चाहिए था तो मुझे बता देते, मैं बना देती। मैंने उनके हाथ से चम्मच लेना चाहा, मगर वो पहले ही हाथ पीछे कर गए। नहीं, मैं कर लूँगा, तुम जाओ, उसने इस लहजे में कहा कि मैं किचन से निकलकर कमरे में चली गई। उसकी बेरुखी पर रोना आने लगा। आज तक किसी ने मुझसे यूं रूखे लहजे में बात नहीं की थी। थोड़ी देर बाद बाहर निकली तो सहन में कपड़ा बिछा था। मेरा देखते देखते उस कपड़े पर औरतें बैठने लगीं, यहाँ तक कि वो पूरी तरह औरतों के हजूम में गुम हो गया। अदनान ने सबके आगे खाना रखना शुरू किया। मेरा दिमाग अब सच में घूमने लगा था। मैंने अदनान से पूछा तो वो खामोश रहा। वो सब चली गईं। ये तुम क्या कर रही हो? मुझे खाना निकालते देख अदनान तेजी से मेरे हाथ से प्लेट छीनते बोला। खाना निकाल रही थी, भूख लगी है, मैंने नॉर्मली कहा। तुम ये नहीं खा सकती, इसने सख्ती से कहा। क्यों? अब मुझे गुस्सा आने लगा था उसकी हरकतों पे, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इसने कहते ही मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कमरे में लाकर छोड़ा। तब तक बाहर मत निकलना जब तक मैं ना कहूँ, वो कहकर चला गया। मैं परेशान सी वही खड़ी रह गई। यूं ही हर रोज असर के बाद औरतों को खाना खिलाया जाता और मुझे उस खाने से दूर रखते। मुझे अब तशवीश होने लगी थी कि हो क्या रहा है। अदनान का रोना, रोज औरतों का घर आना, मुझे इस खाने से दूर रखना। मैंने सोच लिया कि मुझे इस राज से पर्दा उठाना है। मैंने अदनान से झूठ बोला कि मैं मम्मा जान की तरफ जा रही हूँ और घर से निकल आई। फटे पुराने कपड़े पहनकर वापस गई और खाना खाकर निकल आई। कपड़े बदले तो घर गई। मैं अभी तक सोच रही थी कि मुझे क्यों नहीं खाने देते थे वो खाना। मुझे कुछ नहीं हुआ। वो खाना खाकर मैं सोने के लिए कमरे में चली गई। अभी दरवाजे तक पहुंची थी जब अंदर हुई होती गुफ्तगू सुनकर जान लरज गई। मुझे लगा मैं यही गिरकर मर जाऊंगी। अदनान के गुनाह से पर्दा उठ चुका था। अभी मुझे यूनी के उस कमरे के अंदर होने वाला कारनामा याद आया। मतलब अदनान एक गुनाहगार आदमी था। वो कैसे किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकता था? अदनान ने एक लड़की से नाजायज ताल्लुक बनाए जिसकी वजह से इस लड़की ने खुदकुशी की और अब अदनान अपने किए गुनाह की वजह से बेचैन था। इसे सुकून नहीं मिलता था। मैं लड़खड़ाती दरवाजे तक पहुंची और गेट से निकलती टैक्सी लेकर घर की तरफ रवाना हुई। घर पहुंची 10 बज चुके थे। सभी मुझे यूं देख घबरा गए। मैंने
نہیں سچ بتایا تو بابا جان اور دادا جان نے مجھے وہاں جانے سے منع کر دیا۔ میں خود ایک ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی جو کہ